साथ है। मैंने कुछ देर पहले देखा था कार्बी आंगलंग में आपने पीस रैली में जब अपने बात रखे, उसी भाषण में आपने कहा जनता को भगवान के हिसाब से आपने प्रणाम दिया। यही आपका सबसे बड़ा गुण है, यही आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा शक्ति है। और इसलिए आज सिर्फ देश की ही नहीं, दुनिया का जनता को आप उनकी हृदय जीतने के लिए आप सफलता प्राप्त किया है। तो मैं इस समय ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, आपकी पिछली करीबन लगभग 8 साल की कार्यकाल में असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या नहीं हुआ। लाखों करोड़ आपने पैसा दिया हमारे सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, रेलवे कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन, डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन, और हमारे अलग अलग प्रदेश में नई नई एयरपोर्ट बने, उड़ान स्कीम से आए सारे प्रदेश को जोड़ा। मार्ग के जरिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को आपने गंगा से जो जोड़ा और बंगोपसागर से जोड़ा, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा नई जनरेशन, हमारा इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, सबको एक सुनहरा मौका मिला भाग लेने का। तो आज मैं इस सभा में विशेष रूप से आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने आजादी के पिछले 75 साल के अंदर आप पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के 5 प्रतिनिधियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने शामिल किया। परम सदा राइस एखेते प्रथम गराकी प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्वांचल 5 जन प्रतिनिधिक तेखेते केंद्रीय मंत्रिमंडলত स्थान निश्चित करिले। यातকৈ ডাঙৰ সন্মান আৰু ইয়াৰ উপৰিও আজি এই মুহূৰ্তত আমি এগৰাকী মহান নেতা, তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰে আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ জনতাক আজি উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিছে, সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইগৰাকী মহান নেতাই আমাৰ হৃদয়ত থকা ভূপেন দাক মৰণোত্তৰভাৱে দেশৰ সৰ্বোচ্চ সামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন তেখেতে প্ৰদান কৰিলে। আৰু অসমীয়া বাপুতি সাহোন, গামোচা, ঢোল, পেঁপা আৰু তালক তেখেতে যেনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত মৰ্যাদা দিলে, ইয়াৰ যোগেদি এই কথা স্পষ্ট কৰিলে তেখেতে অসমৰ লোক সংস্কৃতিক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোক সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধা কৰে, ভাল পায়। গতিকে এনেধৰণৰ এগৰাকী মহান নেতা আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে। মই আৰু বেছি দীঘলীয়া বক্তব্য দিব বিচৰা নাই। মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। আপুনি নিৰন্তৰভাৱে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হিচাপে আমাৰ সন্মুখত দেখা দিয়া কেঞ্চাৰ বেমাৰ, এই বেমাৰ নিৰাময়ৰ বাবে, চিকিৎসাৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে দিল্লী, বম্বে, চেন্নাইলৈ যাব লগা হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা নাছিল। কিন্তু 2018 চনতে আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাক আজি আপুনি আপোনাৰ কাৰ্যকালত আপোনাৰ দক্ষতাৰে আপোনাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক আৰু জনসাধাৰণক লগত লৈ আপুনি 7খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি অভিনন্দনৰ পাত্ৰ। আৰু 7খন আজি নতুন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল। আজি অসমলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বলিষ্ঠ তেখেতৰ নেতৃত্বত শান্তি ঘূৰি আহিল। আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদায় কয়, শান্তি, ঐক্য, সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতি। তেখেতে সেইবাবে এটি স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ যি নীতি তাহানি কালতে আৰম্ভ হৈছিল। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই একবিংশ শতিকাত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী জনগণক আন্তৰিকতা, আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ নতুন ভাৰত, শক্তিশালী ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সবকা সাথ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी प्रयास, এই নীতিৰে আজি তেখেতে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে। গতিকে এই নীতিৰ দ্বাৰা
আজি অসমৰ বুকুটো কাম হৈছে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক ঐক্যবদ্ধভাৱে লগত লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নতুন অসম গঢ়াৰ যি দৃঢ় পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে তেখেতে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। গতিকে মই এইখিনি কথাকে কৈ আজি পুনৰবাৰ পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি এই বিহুৰ বতৰত আপোনালোকে আহি আমাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক যি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলে তাৰ বাবে এই মহাস্থানত উপস্থিত থকা এই পবিত্ৰ মহাস্থান জগন্নাথ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ শ্ৰীচৰণত মই গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে খন্তেক আগতে আমাৰ যিসকল শিল্পীয়ে বিহু গীত পৰিবহন কৰিলে, নৃত্য গীত পৰিবহন কৰিলে, মই প্ৰতিগৰাকী শিল্পীক আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণে অসমীয়া সমাজখনৰ লোক সংস্কৃতিৰ শক্তি সৌন্দৰ্য আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিলে আপোনালোক নিশ্চিতভাৱে কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। মই আপোনালোকক সেৱা জনাইছোঁ। এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ আজি এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे बीच रतन टाटा जी, जिन्होंने हमें जो आशीर्वाद दी है इस उम्र में आके, हमें हौसला दी है और असम सरकार के साथ तथा त्रास दोनों मिलकर आज सारे नॉर्थ ईस्ट में जो कैंसर हॉस्पिटल का फैसिलिटी डेवलप किया गया है और अगले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी जो नीति है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को साकार करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया की ये असम मेडिकल हब बनने जा रहा है। इस विषय पर टाटा जी ने जो मदद की है, उनकी ग्रुप की तरफ से जो मदद मिली है, इसके लिए मैं सारे असम के जनता की तरफ से रतन टाटा जी को प्रणाम देता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे बीच उपस्थित हमारे अति प्रिय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिनाउंड जूरिस्ट जस्टिस रंजन गोगोई जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भी आज हमारे बीच आके हमें हौसला दिया। बाकी हमारे मंच पे उपस्थित सारे हमारे मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए सभी को मैं हमारी तरफ से धन्यवाद देते हुए आम जनताओं को हमने हमारी तरफ से प्रणाम देते हुए मैं अपने आप भाषण को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय भारतर प्रधानमंत्री आमार सकलोरे आदरर नरेंद्र मोदी डांगरिया, आमार मजत उपस्थित अहोमर महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी डांगरिया, भारत सरकारों सम्मानीय मंत्री आमार सकलोरे श्रद्धार सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, डिब्रुगढ़र सांसद भारत सरकारों मंत्री रामेश्वर तेली डांगरिया, भारतर अवसरप्राप्त मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभार सम्मानीय सांसद रंजन गोगोई डांगरिया, टाटा ट्रास्टर अध्यक्ष पद्म विभूषण असम वैभव रतन टाटा डांगरिया, टाटा सन्सर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखरन डांगरिया, टाटा ट्रास्टर ट्रास्टी नोएल टाटा डांगरिया, सम्मानीय मंत्रीসকল, সাংসদসকল, বিধায়কসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ সেৱাৰ থলী ৰাইজ, আজিৰ দিনটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে এক অত্যন্ত গৌৰৱময় দিন। আজিৰ এই দিনটোত
ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছে আৰু খন্তেক সময় পিছতেই বৰপেটা, তেজপুৰ, লখিমপুৰ, কোকৰাঝাৰ, যোৰহাট আৰু মঙলদৈ কৰ্কট চিকিৎসালয় তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গোৱালপাৰা, নলবাৰী, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, ধুবুৰী আৰু নগাঁৱৰ কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। আপোনালোকৰ লগতে এই আটাইবোৰ স্থানতেই গোট খাই থকা সমূহ ৰাইজক मैं धन्यवाद और कृतज्ञता जनाइछु। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस परियोजना की कार्यान्वयन के लिए असम सरकार द्वारा प्रदान किए गए 2766 करोड़ रुपया के विपरीत जन कल्याण का बेमिसाल परिचय देते हुए टाटा ट्रस्ट ने 1153 करोड़ रुपया का योगदान दिया। इसी तरह भारत सरकार ने भी हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए अनुदान आगे बढ़ाया और CSR का तहत और कोई कंपनी ने भी हमें 81 करोड़ रुपया का अनुदान आगे बढ़ाया। ये काम भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2018 सन में गुवाहाटी में शुरुआत किया था और आज हमारा सबका अपना नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो एक प्यार करने वाला सबसे बड़ा विश्व का राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर कमल से इसका विमोचन, ये हॉस्पिटल का विमोचन होगा। ये हॉस्पिटल का विमोचन होने का साथ खाली असम नहीं, सारे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा कैंसर केयर ट्रीटमेंट गुवाहाटी, असम, डिब्रूगढ़ में उपलब्ध होगा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज के ये गौरवमय दिन में, गौरवमय क्षण में मैं टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष रतन टाटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं टाटा जी को बोलना चाहता हूं कि असम कृतज्ञ असमिया जाति आपको हमेशा आदर सहित आपका नाम अपना दिलों में रखेगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूं। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমক আৰু উত্তৰ পূৰ্বক প্ৰতিটো দিশতে গতি দিছে, আমাক প্ৰেৰণা দিছে, আমাক আগুৱাই যাবলৈ সাহস দিছে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में असम में 8 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है। 3 पुराना मेडिकल कॉलेज का बाद 5 नया मेडिकल कॉलेज असम ने स्थापित किया। 8 मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है और 8 नया मेडिकल कॉलेज का काम हमने इसी साल अनुमोदन किया है। 26 मेडिकल कॉलेज असम जैसा स्टेट में होगा और इसका काली कृतित्व और प्रेरणा का जो शोध है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और मोदी जी का प्रेरणा के लिए ही ऐसा असंभव काम हमने संभव करने का प्रेरणा मिला। प्रधानमंत्री जी, कोविड का काल में आपने असम का जनता को जो प्यार किया, हमारा लोगों को अपने वैक्सीन का बंदोबस्त किया, ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया, मेडिसिन का बंदोबस्त किया, आईसीयू का बंदोबस्त किया। आपने कोविड महामारी का समय असम और उत्तर पूर्व को जो प्यार दिखाया, ये हम कभी नहीं भूलूंगा। मैं असम वासियों का ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद कामना करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप नॉर्थ ईस्ट को भारत के भविष्य के एक ग्रोथ इंजन बताया था, न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ बताया था। आज आपका आशीर्वाद से असम को एम्स मिला,
मैं आपको ऐसी सभा से आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप दोबारा कृपा करके असम में नवंबर महीना में आइए और एम्स का विमोचन करने का कृपा करें। साथ साथ प्रधानमंत्री जी, कनेक्टिविटी का सेक्टर ने आपने हमको, हमारा स्टेट को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, वो आकाश मार्ग से हो, स्थल मार्ग से हो, जल मार्ग से हो। अभी असम में आपने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाइनेंस के गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी का बीच में जो पुल का अनुमोदन किया था, वो भी 2023 में तैयार हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि असम का ऊपर आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और असम भारत का विकसित राज्य में असम का स्थान मिले, ऐसी रास्ता में आपको आगे बढ़ने के लिए आप हमको आशीर्वाद देते रहिए। प्रधानमंत्री जी, हमारा सरकार ने असम के जातीय जीवन के अमर नायक महावीर लासित बरफुकन के 400वां जन्म जयंती इस साल के 26 नवंबर यानी लासित दिवस में नई दिल्ली में मनाने का फैसला किया है। मैं उस लासित दिवस का कार्यक्रम में आपका उपस्थिति मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं। श्रद्धा राइज, আজিৰ দিনটো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱ আৰু মহত্বৰ দিন। সেই দিনবিলাকলৈকে আমি মনত পেলাম যেতিয়া দুখীয়া দৰিদ্ৰ মূৰমুখজন ভেলোৰলৈকে গৈছিল, মুম্বাইলৈকে গৈছিল। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ আমি দেখা পাইছিলো পেট চিটি স্কেনৰ দৰে যি ষ্টেট অফ আৰ্ট মেচিন, সেই মেচিনেৰে আমাৰ কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ আজি সমৃদ্ধ কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা আৰু অসমৰ কোনো কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট অসমৰ বাহিৰত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যাব নালাগে। এই ধৰণৰ মাইলৰ খুঁটা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্যই স্থাপন কৰিব পাৰিছে। ৰতন টাটা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিশ্বই আজি জানিব যে অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্য এখনে ভাৰতৰ আটাইতকৈ উন্নত মানৰ কেঞ্চাৰ চিকিৎসা ভাৰতৰ লোকক প্ৰদান কৰিব পাৰিব, দক্ষিণ পূবৰ এছিয়াৰ লোকক প্ৰদান কৰিব পাৰিব। এয়া আমাৰ বাবে অত্যন্ত স্মৰণীয় আৰু গৌৰৱৰ দিন। মই আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সকলোকে আজিৰ এই গৌৰৱময় মুহূৰ্তত ধন্যবাদ দিছো আৰু অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আটাইকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। অসমক লৈ মই সদায় আশাবাদী। মই বিশ্বাস কৰো আগন্তুক বছৰবিলাক অসমৰ বছৰ। অসমে এতিয়া ভাৰতৰ যুগত নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ এই অশ্বমেধৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমে হীৰৰ নয়ন হৈ এদিন জিলিকিব, তাক মই বিশ্বাস কৰো। এই আশাৰে মই মোৰ ভাষণৰ সামৰণি মাৰিছো। আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব, কাল ৰাত্ৰিয়েই নাথাকিব, জয়াল ৰাতিৰ বিভীষিকাবোৰে হাঁহ জুই দেখি পলাই যাব। আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব, দীপ্ত সূৰ্য জিলিকিব, সেই ৰশ্মিয়ে নিঠুৰ যুগক নতুন গতি আনি দিব। फिर से नया सवेरा होगा, ये अंधेरी रात नहीं होगी, भयाल रात की ये विभीषिका आलोक साहस से भयभीत होगी। फिर से नया सवेरा होगा, दीप्त सूरज चमकेगी, यही रोशनी इस बेजान युग में नई गति लाएगी, नई गति लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। इतिहास साक्षी है आपके कुशल नेतृत्व का। असम के स्वास्थ्य क्षेत्र की क्रांति आपके मार्गदर्शन का सीधा परिणाम है। देवियों और सज्जनों, असम के स्वास्थ्य जगत के लिए आज का यह दिन ऐतिहासिक है। असम कैंसर केयर फाउंडेशन के तत्वाधान में कुल 17 कैंसर केंद्रों की परिकल्पना है, जिसमें 7 कैंसर केंद्र पूरी तरीके से तैयार है और 7 कैंसर केंद्रों की आधारशिला आज रखी जाएगी।
मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि कुछ ही क्षणों पहले डिब्रूगढ़ कैंसर केंद्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित किया है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है असम कैंसर केयर फाउंडेशन की परिकल्पना के ऊपर एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीब एवं मध्यम वर्ग को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सेवा प्रदान करने के प्रति कटिबद्ध रहे हैं। आपके नेतृत्व में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री अभीम योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एवं हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर असम ने अफोर्डेबल कैंसर केयर पर एक ठोस पहल की है। आइए सुनते हैं असम की एक गौरव गाथा। असम की संस्कृति और परंपरा बहुत समृद्ध है। यहाँ एक नई गौरव गाथा का शुभारंभ होने वाला है। कैंसर के रोगियों की संख्या भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। केवल असम में ही इसके लगभग 50,000 से ज्यादा केस सालाना दर्ज किए जाते हैं। इस रोग के इलाज हेतु कई लोगों को दूर के बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इसमें काफी खर्च पड़ जाता है और कई अन्य तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती है। इनका नाम आशा है। आशा यानी उम्मीद। आशा एक माँ है जो कैंसर ग्रस्त है, लेकिन अब उसे लंबी यात्राओं और इलाज के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ती। The Union government had planned the setting up of 20 state cancer institutes and 50 tertiary care cancer centers in different parts of the country. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही कैंसर के इलाज के लिए संवेदनशील रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरित होकर असम सरकार ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े कैंसर फेयर कार्यक्रम की शुरुआत असम में की है। टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर सन 2018 में असम कैंसर केयर फाउंडेशन के परिवर्तनात्मक स्थापना समारोह से असम में एक नया इतिहास रचा गया। असम कैंसर केयर फाउंडेशन, जो कि असम सरकार और टाटा ट्रस्ट की साझा पहल है, के अंतर्गत करीब 4,000 करोड़ की लागत पर असम में 17 आधुनिक कैंसर अस्पताल आने वाले हैं। भारत में कैंसर केयर अस्पतालों के नेटवर्क संबंधी यह सबसे बड़ा निवेश है। आशा को अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज मिलेगा और वह भी उसके घर